Let us start the program by seeking the blessings of Ma Saraswati, Ma Bharati and Sant Shiromani Paramhans Sant Hirdaram Sahib Ji. For the pious purpose, I would most humbly request Reverend Sid Bauji, Sir V.S. Rai, all management members and all the heads of the institution to light the lamp and pay floral tribute in the lotus feet. Let's keep on clapping. Today, we all have gathered here to share and to cherish the joy and wonders created by the brilliance of our school. Before we start the program, we would like to honor the dignitaries on the dais. We accord the floral welcome with heartfelt delight and enthusiasm. For this, I request Honorable Ghanshyam Bulchandani ji, Secretary, Shahid Hemu Kalani Educational Society, to offer floral welcome to Reverend Sid Bauji, President, Shahid Hemu Kalani Educational Society. Now I request
Shri Manish Jain Sir, Principal NHL Shahid Hemu Kalani Educational Society. A huge. Now I request Ms. NHLPS. The objective of this program is to honor the students who brought laurels to the school. For this, we appreciate the commitment and loyalty of the students and the entire staff who serve this institution in different capacities, focusing the standard of excellence. Success flourishes only in perseverance, ceaseless, restless perseverance. Now, I would request our principal, Mr. Manish Jain, for the welcome speech. रत्न गर्भा माँ भारती, माँ सरस्वती और संत हृदयराम साहेब जी को चरण वंदन. Teacher's teacher, our guide and motivator, Reverend Siddh Bhauji, Luminary Secretary 6, Sri Ghanshyam ji, esteemed Secretary, JSS, Sri Mahesh Dayaramani ji, Principal Management in Charge, NHLPS, Sri Manohar ji, and all the devoted members of the society. Most respected, Mr. V.S. Rai, the chief guest of the day, and the ex-principal of this NHLPS school, and Mrs. V.S. Rai, Ms. Rita, Miss Amrita, and most valued parents and educators. Shining stars of the Super Navnit year, and my dear students, I welcome you all and heartily congratulate to all outstanding performers of standard 10th and 12th and all other successful students. Children, I am overwhelmed with great success of my students. I am sure it is the result of Santji's blessing, Reverend Siddh Bhauji's motivation guidance, able leadership of our Honorable Secretary Ghanshyam ji, and management in charge, respected Manohar ji. Your parents, teachers, and their contribution in your success. And definitely, it's your own hard work that has made your dream come true. I would like to thank Reverend Siddh Bhauji for his blessings and care for children. My gratitude to all management office bearers, and a special thank to the philanthropist, Honorable Khan Lakhani ji and family from Hong Kong. I would like to thank Honorable Mahesh ji for his breathless efforts in collecting funds for the society. How can I forget the contribution of Mr. V.S. Rai, the ex-principal NHLPS and the chief guest of the day. I thank him from the bottom of my heart. I also thank Vice Principal, HM coordinators, all teachers and parents for their role in the success of the students. I expect much improved result, discipline and vocal English in current session. Children, do you like so? Yes, I didn't get a good reply. Yes, thank you. And teachers, will you let the words come true? Yes, sir. Thank you. I am happy to hear that. Now, not consuming much time, I would like to conclude with best wishes to all and a warm welcome once again on this splendid occasion of the felicitation program. Let's celebrate the carnival. Thank you. Thank you. There are 4 steps to achievement. Plan purposefully, prepare prayerfully, proceed positively, and pursue persistently. Now I request Ms. Vishakha Rajani from 10th 2012-13 to share her strategy and experience before us. Good morning to all the dignitaries present over here. Today I, Vishakha Rajani, is here to express my heartfelt gratitude to everybody who has helped me in achieving my goal. This is the day I'd always dreamt of. Imagining myself receiving this honor and making my parents proud. And finally, this nostalgic moment has arrived. But this sweet fruit does not belong to me alone. It's an outcome of a lot many people who have nourished and tendered the seed of education.
I owe this success to my parents and friends who have always helped me in tackling all the obstacles, which sometimes seem to me as an end. My mother, who taught me that each end is the start of a greater success, waiting for me to knock its door. I'm extremely thankful to all my teachers who have believed in me, who trust me, who gave me space to believe in them, to trust them. And to me, they are actually my mothers, who revitalized me with positive energies whenever I felt unmitigable. As it is said that motivation is a great source which can rejuvenate positive energies within a person. So, I want to express my gratitude to Reverend Sid Bhauji, who has been a continuous source of inspiration and motivation for me. He used to wake me up early in the morning so that I could study. Bhauji has constantly been reminding me of my responsibility of not only achieving my goal, but also to be a good and active human through his books, reminders, and many more. Moreover, I maintained the strategy of completing my course in time. And I've always believed in qualitative study rather than quantitative. So I devoted sufficient time to each and every subject and was thoroughly prepared. It's not only the result of my previous efforts, but also it carries a responsibility of maintaining the success in the near future. And today, along with accepting this prize, I promise everybody that I'll continue to make everybody proud. Thank you everyone for helping me so much. I love you all, my teachers, my principal sir, Dr. V.S. Rai. We miss you a lot. And thank you, Bhauji. And I want you all to bless me in future also so that I could make everybody proud. Thank you. Thank you, Vishakha. Next, I invite Ms. Bhavna Nathani from 10th, batch 2012-13 to share her experience. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you think you will lose, you are lost. Life's battle don't always go to the faster or stronger man, but sooner or later, the man who wins is the one who thinks he can. Good morning to all the dignitaries present over here. I, Bhavna Nathani, is here to offer my heartfelt gratitude to all the people who played a vital role in achieving what I dreamt of. Success is merely not achieved by a single person, but it is the result of hundreds of hands working behind you. So, firstly, I would like to dedicate my success to my parents. They have always supported me by fulfilling all my needs, providing me strength, and making me believe that I can do it. Secondly, I would like to thank our motivator and guide, Reverend Sid Bhauji. He had always been there for me. He supported me whenever I required him. He is one to take the pains and wakes us up early in the morning. He also inspired me by providing inspirational books and CDs. To enhance our concentration, he used to provide us almonds, saffron, and many more other things to boost up our knowledge. I would like to thank our then principal, Mr. V.S. Rai sir, to share his rich experience and make us comfortable by solving our problems instantly. Our vice principal and HM ma'am have always been our greatest support. They are like a friend, philosopher, and guide. Friends, what I think is, friends, it is rightly said that a teacher's touch can create a miracle in students' life. In this journey, I feel I'm so lucky that I am blessed with such teachers who are highly supportive as well as cooperative. What I feel is our school has one of the best and most hardworking faculties than any other institution. At the starting of every session, Bhauji emphasized us to plan our schedule and work according to it. According to me, qualitative study is more important than quantitative study. It doesn't matter how many hours we study, but what matters is that how many efforts we put in our studies. At the end, I would like to thank all of them who helped me in achieving this great success. I also promise Bhauji to live up to his expectations in class 11th and 12th and bring laurels to my school, teachers, as well as my parents. Thank you.
Vande Mataram Bhauji, Principal Sir, Vice Principal Ma'am, HM Ma'am, all the management members and all the dignitaries on the dais, and our very own Mr. V.S. Rai Sir, my teachers and friends. It is a new day and there is no better place to be. Thank you for sharing this day as friends and as family with me. Today I'm standing here, I'm able to speak in front of you. It is all by the grace of God, Santaji, my mom, dad, Reverend Bhauji, my teachers and my sister Vandana Avatramani. A thing which I experienced in my life is that mere studies won't bear fruitful results, but the upbringing, the blessings of our parents, the most important, the blessings of the elderly, they matter a lot. So my sincere thanks goes to Reverend Bhauji, all the management members, Principal Sir, Mr. V.S. Rai Sir, Rita Ma'am, Sangeeta Ma'am, Himanshi Ma'am, Abhilasha Ma'am, Dipti Ma'am, Neelam Ma'am, Mani Ma'am. I would also like to thank Shobna Ma'am, Komal Jaggi Ma'am, Archana Ma'am, Rita Ahuja Ma'am, Rini Sunil Ma'am, and all my primary teachers. I would also like to thank Bhupesh Sir. I'm just another average-witted girl like you all, and I'm sure that there must be many other girls in this crowd who want to be a face in this crowd. So my suggestion to all of them would be that please follow Bhauji and your teachers blindly. If you'll follow them, success will be just a step ahead. I remember the day on which I had business exam. I was extremely unwell on that day and I had made up my mind that I'll not be able to write the exam and I'll take the help of the writer to write the exam. I called Rita ma'am. She said that, okay, I'll provide you with the writer. She even provided me with the writer. But together with it, she said that, Beta, I know you can do it and winners usually face problems. I remembered her words and that day her words were like jewels to me. I continued writing the exam and I have scored 95 marks in business. And I'm sure that I'm not going to miss my Navnit family because I'll remain a part of this family as a daughter to all the teachers and as a sister to all my juniors. Thank you. Thanks a lot. I invite Ms. Vaishali Murjani to share her experience. Good morning to all the dignitaries, teachers, my friends and my schoolmates. First of all, I'd like to bow my head in the holy feet of Paramhans, His Holiness Sant Hidaram Sahib Ji, owing to whose blessings and vision we all have been able to achieve this feat. Next, I'd like to thank Reverend Sid Bhauji, whose continuous guidance, blessings, support and inspiration has been a pillar for us. I'd also like to thank all the management members, HM ma'am, Principal Sir and Vice Principal ma'am for helping us at every stage. Next, I'd like to extend my salutations and adorations to all my loving teachers, right from nursery to class 12th, who have helped me and without whom I could not have been here. I'd also like to thank all the non-teaching staff and helpers who have indirectly facilitated us, and we forget to thank them. So a huge round of applause for all of them. Two years ago, on this same platform, I saw the dream of making my parents honored, and today I have fulfilled this dream. I cannot tell you how good I feel and how blessed I feel. I'd also want that all the Navnidites in the coming years fulfill this dream and get this opportunity to get honored their parents. And I hope that you all do this. Won't you? For this, I'd utterly request you to please start studying from the beginning, since only continuous hard work will fetch you returns. Second piece of advice which I'd like to give you all, indeed it's a request from my side that please respect your teachers, because only their blessings and their teachings you will carry throughout your life. Work hard towards your success, work hard and try to achieve it. Be positive and you will get everything. In the end, I'd like to conclude that most people achieve success because they are determined to. So be determined to achieve your success. Thank you, and thank you all for helping me. Thank you, Vaishali. Now I request Ms. Archana Gupta, teacher NHLPS, to appreciate and motivate our students. थैंक यू दीप्ति मैम, श्रद्धेय सिद्ध भाव जी, वीएस राय सर जो कि आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और सम्मानित मंच,
मेरे सभी साथियों और सबसे प्यारे बच्चों, वैशाली ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने 2 साल पहले एक सपना देखा था जो आज पूरा हुआ। मुझे लगता है यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आधे से ज़्यादा ये सपना देख रहे होंगे कि काश हमारे पेरेंट्स भी यहाँ आए और उनका भी इसी तरीके से सम्मान हो। पहले तो उनके लिए कहूँगी जिन्होंने अभी तक ये सपना नहीं देखा है, पहले वो ये सपना देखें। उनके मन में भी ये इच्छा जागनी चाहिए कि एक दिन उन्हें भी अपना सम्मान कराना है अपने माता पिता के साथ, क्योंकि जब तक सपना नहीं देखेंगे उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब जिन बच्चों ने सपना देखा है उनके लिए कहना चाहूँगी, सपने यूं ही पूरे नहीं होते हैं। विनीता और वैशाली ने इसके लिए कितनी मेहनत की है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं क्या सभी जानते हैं इस बात को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदें उड़ा देते हैं। जिस दिन आपकी नींद उड़ जाएगी ना, यकीन मानिए आपका सपना पूरा होने वाला है। लेकिन पहले वो ललक, वो अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कीजिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं, श्रद्धेय सिद्ध भाव जी हमारे बीच हैं। आपको क्या बताऊं, आप तो क्या, हमारे मन में भी ये इच्छा जगती है कि कुछ ऐसा कर जाएं कि भाव जी बस मुस्कुरा के इतना कहें, वेल डन। बहुत मायने रखता है उनसे शाबाशी मिलना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं, सार्थक हो रहे हैं। तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए जुट जाइए। अभी टीटी रंगराजन जी का यहाँ सेशन हुआ था और उन्होंने यही कहा कि हम सबको मोटिवेशन मिलता है, कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता है, पर शर्त यह है कि हम उस रिसेप्टिविटी वाली कंडीशन में हो, हमारे अंदर वो ग्राह्यता हो, रिसेप्टिविटी हो। उन्होंने बताया कि एडमंड हिलेरी जब भी एवरेस्ट का फोटो देखते और उसको कहते, द मोर यू रिजेक्ट मी द मोर आई डिटरमाइन टू क्लाइंब ऑन इट। और उन्होंने ये भी कहा कि एवरेस्ट का कद नहीं बढ़ने वाला, लेकिन इंसान के हौसले और हिम्मत जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। एक एक्सपीरियंस और आपसे शेयर करना चाहूंगी। उत्तरकाशी का एक छोटा सा गांव था नाकुरी। आपको पता है पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनके लिए पहाड़ों पे चढ़ना और उतरना बहुत आम बात है, और इसीलिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, उनके लंग्स हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। एक बच्ची थी जो चाहती थी कि इस बर्फीली चोटी की ऊंचाई पर एक दिन मैं जाऊं। उसके मन में इच्छा थी, वहां से कितना सुंदर दृश्य दिखता होगा, कितना बड़ा एक अचीवमेंट होगा मेरे लिए। बच्ची का भाई सौभाग्य से एक लोकल जो क्लाइंबर्स का ग्रुप था उसका मेंबर था। वो अपने भाई से कहती, भाई जब तुम चलोगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन एज यूजुअल हमारे इंडियन भाई और स्पेशली बड़े हों तो उनको तो पूरा अधिकार मिलता है, उसने उसको वहीं झिड़क दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, घर जा खाना बना, ये पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना लड़कियों के बस की बात नहीं है। थोड़ी देर गई, रोई गाई खिड़की से, फिर एवरेस्ट को देखती रही, फिर बोली अगले दिन, भाई एक बार ले चलो ना। उसने फिर रिजेक्ट कर दिया। और आप जानते हैं, माई एवरेस्ट डू द जर्नी ऑफ द टॉप में बछेंद्री पाल ने यही लिखा है कि वो बच्ची तो बन गई बछेंद्री पाल और उसका भाई की पहचान बनी बछेंद्री पाल के भाई के रूप में। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं। और आपने स्प्रिंग देखी ना, स्प्रिंग, एक हम लोहे के टुकड़े को यदि किसी प्रेशर से दबाते हैं तो क्या होता है, लोहे का टुकड़ा दबा रहता है और थोड़ी देर बाद वहां पर जंग लगनी शुरू हो जाती है और वो ब्रिटल होकर टूट जाता है। लेकिन स्प्रिंग देखिए ना, जितना प्रेशर डालेंगे जितना प्रेशर डालेंगे दबती जाएगी दबती जाएगी, लेकिन जब उछलेगी तो उस उछाल का अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। तो प्यारी बच्चियों, स्प्रिंग की तरह बनो। मुझे मालूम है बहुत प्रेशर आपको झेलना पड़ता है, पढ़ाई का, पेरेंट्स की तरफ से भी पीयर प्रेशर बहुत होता है आपके ऊपर। आपकी फ्रेंड्स आपकी मजाक उड़ाती हैं, अरे ये तो इससे मत बोलो, ये पढ़ती रहेगी, ये फ़ोन भी नहीं करेगी, मैसेज भी नहीं करेगी। सहते जाइए, 1 या 2 साल की बात है। उसके बाद जब आप अपना टारगेट अचीव कर लें, वो सब कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी मेहनत ने क्या रंग लाया है। तो स्प्रिंग की तरह बनिए, लगातार आगे बढ़ते जाइए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी, कई बार होता है कि हम टीचर्स, हम लोग आपस में मिलते हैं तो हम बात करते, चर्चा करते हैं, ये बच्ची बहुत अच्छा स्कोर करेगी, इस बच्ची का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन हम भी ह्यूमन बींग्स हैं,
हमसे गलतियां होती हैं, और आज इस मंच से यदि अपनी गलती नहीं स्वीकारी तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। हमारी 2 बच्चियां यहाँ बैठी हैं, पता नहीं नाम लेना ठीक होगा या नहीं, पर मुझे लगता है वो मुझे माफ़ करेंगी, मैं इसलिए नाम ले रही हूँ। सा अधिकार, भावना और रवीना। इतना डांटा है इन दोनों बच्चियों को मैंने, जब ये मेरे पास छोटी क्लासेस में थी। एक तो क्या होता था, लिखने में गलतियां करती थी, ऊपर से इनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्वमेंट था। बेटा, मेरा डांटने का मकसद आपको हर्ट करने का नहीं था, बस मुझे ये लगता था एक तो वैसे ही नंबर कम आ रहे हैं, ऊपर से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं तो और ज़्यादा उसका पढ़ाई पे प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आज इस हार में इतनी खुशी मिल रही है, दोनों ने सिद्ध करके दिखाया कि मैडम आप गलत थी, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ अपना एकेडमिक्स भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आई एम रियली सो हैप्पी एंड माई ब्लेसिंग्स आर विथ यू। और बच्चों, बस यही चाहती हूँ हर एक बैठा बच्चा अपने मन में ये ठान ले कि जो मेरी टीचर्स सोचती हैं, या जो मेरे फ्रेंड्स सोचते हैं, या जो मेरे पेरेंट्स सोचते हैं, अगर वो मेरे लिए गलत सोच रहे हैं तो मुझे उनको सिद्ध करके दिखाना है। क्योंकि इंटेंशंस किसी के बुरे नहीं हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमें किसी भी तरीके से अपने बच्चों को उस ऊंचाई तक ले जाना है जिस ऊंचाई तक का सपना भाऊजी देखते हैं और संत जी ने जिस विश्वास के साथ इन विद्यालयों की स्थापना की थी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्प्रिंग बनिए, बस ये याद रखिए, प्रेशर आ रहा है, सहते जाइए, एक दिन आएगा जब आप अपनी ऊंचाइयों को पा सकेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Who do you want to be? Now, I would invite Ms. Mani Sharma, teacher NHLPS, to encourage our students. Good morning, Reverend Siddh Bhauji, esteemed members of management, today's chief guest, respected Mrs. and Mr. V.S. Rai sir, heads of Navneer Hasomal Lakhani Public School, proud parents, proud teachers, and my dearest students. I, Mani Dubey, PGT Accountancy, is here before you to share the success story of our girls of the school. The students who have brought laurels to the school had to work hard, tirelessly, with the continuous motivation and guidance of Reverend Siddh Bhauji. They were focused about their goals and planned for it. As a teacher, personally I feel that there is no shortcut to achieve success, and it is rightly proved by our girls. Reverend Siddh Bhauji had provided all the facilities to our girls so they could attain their goals. All the teachers and heads worked very hard. They had made effective strategies and plannings and executed them well. Parents also cooperated with their children. Ultimately, we got success. But this is only a stepping stone. We have to go for a long journey. This is not our destination, and I hope that we will surely achieve what we want to achieve. Surely we reach to the epitome of the success. But for this, my dear girls, you have to follow the success mantra. And you know what success mantra is? The success mantras are: choose your career goals which should be specific and clear. Generate a strong desire to achieve your goals. Remove external distractions like cell phones, TV, computers, Facebook, etc. Prepare timetable and allot enough time to all subjects. Inculcate a strong desire to be healthy and energetic and follow health rules which are told by Reverend Siddh Bhauji. Be regular and punctual to the school, as regularity is the one of the important parameter of the success. Pay total attention. Listen when teachers explain. Love and respect your school and your teachers. At the end, my heartiest congratulations to all the achievers, their proud parents, and their proud teachers. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you, Mani ma'am. Every great work, every big accomplishment has been brought into manifestation through holding the vision. With the blessings of Santaji, motivation of Bhauji, and true guidance of Manohar Vaswani ji, management in charge NHLPS, we all are here to witness this moment of happiness, pride, and success. Now I would request Mr. Manohar Vaswani ji
to enlighten us with his thoughts. सबसे पहले मैं संत शिरोमणि हिरदाराम साहिब जी और श्रद्धेय सिद्ध भाव जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री वी.एस. राय जी, मिसेस वी.एस. राय, श्री महेश दयारामानी जी, श्री घनश्याम बुलचंदानी जी, मेरे कलीग श्री जानियानी जी, गोपाल गिरधानी, भगवान दामानी जी, और प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस, ऑनरेबल टीचर्स, एंड अबव ऑल द पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत खुशी का अवसर है उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कुछ कर दिखाया, उनको सम्मान किया जाएगा, और साथ ही ये जो अवसर है वो उन लोगों के लिए भी है जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये रिजल्ट जो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। इसके अलावा और भी रिजल्ट अच्छा आ सकता था। हमने रिव्यू किया और देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बाकी विषयों में नंबर बहुत अच्छे, लेकिन किसी एक विषय में वो मात खा गए और 90% से अबोव नहीं ला सके। अगर एक सब्जेक्ट में उन लोगों ने ध्यान दिया होता तो यहाँ की संख्या जो है 12 से लेकर 24 आराम से हो सकती थी। जैसा कि हमने टारगेट रखा था कि ये सुपर नवनीत ईयर रहेगा, और उस हिसाब से बच्चों ने मेहनत भी की। लेकिन अब आगे की सोचना है, आगे की ओर बढ़ना है। बहुत समय है अभी, और हमें लक्ष्य जो आप लोगों ने बनाया हुआ है, केवल एक लक्ष्य बना के रखिए। आपने देखा होगा टांगों में जो घोड़े जोते जाते हैं, उनके आंखों के साइड में एक पट्टी सी लगा दी जाती है ताकि वो इधर उधर नहीं देख सकें। अगर वो इधर उधर देखते हैं तो अपने रास्ते से भटक सकते हैं, इसलिए उनके साथ वो किया जाता है। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हमें अपना टारगेट खुद, हमें अपनी पट्टी खुद तय करनी होगी, और इस तरीके से सामने देखना होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आते हैं। हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान बढ़ाना है, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान बढ़ाना है, हमें अपना सम्मान बढ़ाना है समाज में। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आप अपने टारगेट को रख के सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप निश्चित ही सक्सेस होंगे। अभी जो 12वीं में टीम है जो है, उनको ये सोचना चाहिए कि समय रहते हुए यदि हम ये सोचते रहे कि दिसंबर आने दो, थोड़े दिनों के बाद पढ़ाई करेंगे, थोड़े दिनों के बाद पढ़ाई करेंगे, तो ये जो सुस्ती है ये बढ़ती चली जाएगी और अंततः हमारे रिजल्ट को प्रभावित करेगी। अगर इसी दिन से, आज से ही हम शुरू हो जाएं और करके दिखा दें, एक एक चैप्टर करते हुए धीरे 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 धीरे, तो हमें कोई तकलीफ आखिर में नहीं होगी और एग्ज़ाम को हम हंसी खुशी फेस करेंगे और अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे। एक और बात आपने देखी होगी कि हमारे कुछ बच्चे 10वीं तक बहुत अच्छा रिजल्ट लेते आए, लेकिन 10वीं के बाद उन्होंने अपनी दिशा चेंज कर दी। इधर उधर कई जगहों पर उनका ध्यान बट गया और पढ़ाई से विमुख हो गए और उनका रिजल्ट हुआ एक सब्जेक्ट में फेल, 2 सब्जेक्ट में फेल, और उनकी दुर्दशा इतनी हुई है, आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके साथ क्या चल रहा है, कैसा वो महसूस कर रहे हैं, न परिवार को बताने की स्थिति में है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आपने 8वीं, 9वीं, 10वीं किया है, आप अपना ध्यान भटकाइए नहीं। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सब यही कहते हैं कि आपका जो मूल कर्तव्य है उस कर्तव्य को न भूलें। बाकी जो काम है सो बाद में कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटी तय कीजिए। जो आपने प्रायोरिटी तय की है, आपके लिए पेरेंट्स ने भी तय की है, स्कूल ने भी तय की है, रेवरेंड सिद्ध भाव जी ने भी तय की है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर वो अच्छे ढंग से हो जाती है तो आप दूसरे काम देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ी भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उसमें कुछ कमी आप महसूस कर रहे हैं, तो केवल उस पर ध्यान दीजिए और किसी बात पर नहीं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। तो जितने भी वीक स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी समय है, बाद में पछताना न पड़े, और उनकी तरह जो लगातार KG 1 से लेकर 10th तक अच्छे नंबरों से पास होते रहे, लेकिन 11th में आते आते उन लोगों ने अपनी दिशा बदल दी और दिशा से भटके और गिर पड़े। अच्छा रिजल्ट आ सकता है,
आप ग्रुप में बना के स्टडी करें। हम भी यही कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ हम बैठ के मेहनत कर सकें, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिए, मेहनत आपको करनी है। हेल्प कितने भी कर सकते हैं, हेल्प जितनी चाहिए हो सकती है, लेकिन करना सब आपको पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा और तैयार रहिए, क्योंकि इस साल हम ये चाहते हैं, हमने ये टारगेट भी रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे, जैसे पहले 12 आए थे, तो इस बार कम से कम 30 बच्चे मेरिट में आना चाहिए और 90 से अबो लेकर आएंगे, तभी हमारा ये साल सफल होगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत गंभीरतापूर्वक केवल शिक्षा पढ़ाई के अलावा इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, तो ही हमारा ये भविष्य। और एक बात आप ध्यान रखिए कि 12th जो है बहुत ही क्रूशियल है। 12th के ऊपर ही हमारा पूरा भविष्य निर्भर करता है। यानी अगर आप कहें कि हमारा पूरा जीवन 12th की रिजल्ट पर निर्भर करता है, अच्छे जगह पे एडमिशन चाहिए, अगर आपने 90 से अबो लाया है, अगर आपको नौकरी की ज़रूरत है, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऐसे बच्चों को ले लेते हैं जिनका परसेंटेज अबो 90 है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो भी 90% से अबो वालों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो तैयारी कीजिए, आपके लिए समय अभी है, समय गवाइए नहीं, और जितनी शक्ति है उस शक्ति को केवल एक ही काम में लगा दीजिए, तो आपके सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मुझे आशा है कि इस बार का जो रिजल्ट है पिछले साल से भी बहुत अच्छा आएगा, कि मुझे उम्मीद है कि अब जो बच्चे हैं जाग गए हैं और सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य किस बात पर निर्भर है। थैंक यू। Thank you, sir, for inspiring our students. Achievement of your happiness is the only moral purpose of your life. Not pain or mindless self-indulgence is the proof of your moral integrity, since it is the proof and the result of your loyalty to the achievement of your values. Now, I would most humbly request Mr. Mahesh Dayaramani ji, Secretary, Jeev Seva Sansthan, to inspire us with his words. Shri Mahesh Dayaramani ji. मंच पर विराजमान मेरे और मेरे जैसे अनगिनत युवाओं को इस सेवा पथ पर लाने वाले हम सबके गाइडिंग स्पिरिट एंड मोटिवेटिंग फोर्स परमहंस संत जी के परम शिष्य स्वामी जी के उत्तराधिकारी रेवरेंड सिद्ध भाऊ जी, शिक्षा के क्षेत्र में बेमिसाल और अनुकरणीय कार्य करने वाले मेरे मित्र घनश्याम फूलचंदानी जी, सचिव शहीद हेमू कलानी एजुकेशनल सोसाइटी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय VH राय साहब जी, उनकी सोलमेट मिसिस राय जी, मिठी गोविंदराम स्कूल के प्राचार्य श्री मनीष जैन जी, मेरे सभी साथीगण जो मंच पर विराजमान है, मेरी शिक्षक बहनें, शिक्षाविद, सभी अभिभावक गण और मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस समारोह में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन सुखमय हो। आप जो भी कार्य करते हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, उसमें सफल हों, जीवन में आगे बढ़ते रहें, ऊंचा उठते रहें और अंततः मानव जीवन के मूल उद्देश्य परमात्मा में लीन की प्राप्ति करें। मैं जीव सेवा संस्थान की तरफ से सबसे पहले सभी प्रतिभाशाली छात्राओं का, जिनको कि आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, उनके शिक्षकगण, उनके प्राचार्य, उनके अभिभावक गण और समस्त स्कूल के स्टाफ को बधाई देता हूँ, जिनके संयुक्त प्रयासों का परिणाम और प्रतिफल आज का यह अवसर है और आज हम इस अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जीवन में इस तरह के
असाधारण अवसर असाधारण प्रयासों से ही आते हैं। मुझे खुशी है कि आज का यह अवसर 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों द्वारा जो निष्ठा से कार्य किया है या उन्होंने जो परिश्रम किया है और उन्होंने जो तप किया है और उस तप और निष्ठा का परिणाम आज का ये अवसर है। और यही कारण है कि आज हम उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। मैंने पढ़ा है और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, प्रतिभा का जन्म तप से होता है और देखा जाए तो विद्यार्थी जीवन तप का ही जीवन है, जिसमें अथक परिश्रम करके, निरंतर परिश्रम करके जीवन में स्थापित होने के लिए शक्तियों को अर्जित करना पड़ता है। और यह कार्य जो भी विद्यार्थी जितनी निष्ठा और ईमानदारी से करेगा, वो विद्यार्थी उतनी ही अधिक प्रतिभा विकसित करके, प्राप्त करके अपने लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने गुरुजनों को इस सम्मान का सहभागी बनाएगा जो आज आप कर रहे हैं। मुझे हमेशा इस बात की खुशी होती है कि आप सिर्फ न केवल इतिहास पढ़ते हो, बल्कि आप इतिहास को रचते भी हो, इतिहास बनाते भी हो। और यही कारण है कि आज हम सब आपको सम्मानित करते हुए अपना सम्मान महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं कि आप जिस स्टेज पे रहें, आप संतुष्ट नहीं होइए, आपको जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे पहले के ऑडिटर्स ने आपको बहुत कुछ इस बारे में कहा भी है। मैं भी एक ही चीज कहता हूं कि अभी तक आपकी कंपटीशन इस स्कूल के विदिन थी, अंदर थी, लेकिन अब आप दूसरे स्कूलों से भी कॉम्पिटेट करेंगे और जीवन में आपको आगे बढ़ना है। कल ही मेरे एक मित्र, मेरे दोस्त यहाँ पर मिस्टर चेतन मसूर, यहाँ के मैनेजर हुआ करते थे, अभी दिल्ली में है। उनका कल मेरे को फ़ोन आया, कहने लगे यार मैं अपनी बच्ची को मोटिवेट कर रहा हूँ कि IIT में सेलेक्ट हो, और इसके लिए मैंने एक रास्ता अपनाया है, क्योंकि हमारे ही पंजाब नेशनल बैंक में एक दीपचंद जैन इंदौर में है। उनसे जब मैंने बात की, मतलब चेतन जी ने जब उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि मेरा लड़का IIT में ऑल इंडिया रैंक में 187 नंबर उसका है, और 5 लाख टोटल बच्चे बैठते हैं, उसके बाद 1.5 लाख शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उसमें 187 नंबर है। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आपका बच्चा इस स्टेज पर पहुंचा, आप पढ़ाते होंगे? कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूं, मैंने उनको सिर्फ सुविधाएं, बीइंग अ पेरेंट, उनको वो माहौल दिया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े। और सिद्धबाबू जी भी यही कहा करते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तो एक जैसा पढ़ाती है, लेकिन बच्चे खुद और उनके माँ बाप जितना उस पर मेहनत करते हैं, उसका ही परिणाम इस तरह के अवसर होते हैं जहां पर हम उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। उस बच्चे की एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने अपने रूम में जहां पर वो पढ़ा करता था, उनमें उसमें लिख के रखा था बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव को मैं कोई ब्लड ग्रुप नहीं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि नहीं, बी पॉजिटिव 4-5 जगह पे उन्होंने ये पोस्टर लगा रखा था, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा, और अपने आप से वो कहता रहा था, और पापा को भी कहता रहा था, मम्मी को भी कहता रहता था कि मैं जो 100 की लिस्ट होगी उसमें मैं आना चाहता हूं, आप आशीर्वाद करते रहें। पेरेंट्स की आशीर्वाद होगी, स्कूल के टीचर्स द्वारा मार्गदर्शन आपको हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन करना सब आपको है। भाऊ जी हमेशा बताते हैं, मैं तो आपको रास्ता बताता हूं, आपको दवा बताऊंगा कि ये दवा पीने से आपको ये फायदा होगा, लेकिन पीनी तो आपको ही पड़ेगी।
निश्चित रूप से आप इस तरह का अपने आप में जुनून पैदा करेंगे तो मैं समझता हूं आप किसी भी स्टेज पर पहुंच सकते हैं, इसमें मेरे को कोई भी डाउट नहीं है। एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों को अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है उनको कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आज का यह आयोजन वस्तुतः ऐसे बच्चों में प्रेरणा पैदा करने के लिए है। अगर आप इस अवसर से, इस फंक्शन से, इस समारोह से एक प्रेरणा लेकर, संकल्प लेकर घर जाएंगे तो मैं समझता हूं इस तरह का आयोजन करना हमारे लिए सफल है और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह अवश्य करोगे। मैं आपको एक भी और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अभी मैं एक भाऊजी कृपा करके हम लोगों को लेकर चलते हैं ताकि हमारा ब्रेन वॉश हो, हम सीखें। अभी एक प्रोग्राम हुआ था रविंद्र भवन में, रंगाराजन साहब वहां पे आए थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक बार तेंदुलकर ईरानी ट्रॉफी में सेंचुरी मार करके वापस आ रहे थे तो उस समय के विख्यात कमेंटेटर नरोत्तम पुरी ने उसको रोककर कहा, उस समय सचिन तेंदुलकर जी 15.5 साल के थे। उन्होंने कहा कि क्या हम ये समझें, उनसे पूछा कि क्रिकेट के क्षेत्र पर, क्रिकेट के फील्ड पे क्या एक नया गावस्कर पैदा हुआ है? तो उसने कहा कि नो, आप दुनिया को ये बताओ एक तेंदुलकर आ चुका है। मैं भी आपसे ये अपेक्षा करता हूं, आज भले ही यहां के बच्चों ने 90%, 92% आए हैं, लेकिन आप जो अभी 12वीं कक्षा में पहुंचे हैं वो इससे भी ज्यादा ला सकते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी में अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी अलग बनानी है। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। आज के खुशी के अवसर के बारे में मैंने कल दादा लखानी जी को बताया और आप सब जानते हैं कि जिस स्कूल का ये फंक्शन यहां पे हो रहा है वो स्कूल परमहंस संत जी के आशीर्वाद से, परम श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी के आशीर्वाद से, दादा की मदद से, दादा लखानी और उसकी फैमिली के मदद से वो स्कूल बना है। नवनिध हासोमल लखानी, उनके माता पिता जी के नाम से ही वो स्कूल समर्पित है वहां पे। मैंने जब आपके बारे में बताया, आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया, तो उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भेजा है। वो मैं मैसेज आपको पढ़ना चाहता हूं, आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। लेकिन आज सुबह, इट्स रियली इंस्पायरिंग, आज सुबह उन्होंने मेरे को फोन किया, कहने लगे यार मैं रात भर सोचा हूं, मेरी मां जब शरीर छोड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा विद्यादान में कभी पीछे नहीं हटना और विद्यादान आप और जीवन दान हमेशा लोगों को देते रहना। जब आप इतने सक्षम बनोगे तो अपने आप इतना काम कर पाओगे। तो उन्होंने खुद कहा, कहने लगे यार मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये जो आपको सम्मानित राशि दी जाती है जेएसएस द्वारा ही दी जाती है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं जिनको ये सम्मानित राशि दी जाएगी, दादा लखानी ने कहा कि मैं वो स्पॉन्सर करता हूं, मैं अपनी तरफ से उनको देना चाहता हूं। उनके लिए मैं उनको जीसा संस्थान की तरफ से, आप सब की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं उनका मैसेज पढ़ता हूं। डियर महेश, माय चरण वंदना टू परमहंस संत हृदयराम साहब एंड रेवरेंड सिद्ध भाऊ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I congratulate all the teachers, volunteers and management of the school for the excellent performance of the students. I am feeling honored for being contributor for setting up of this temple of education whose students have brought such a pride and glory for me and my family. It is definitely the grace of God and blessings of your parents, Paramahans Sant Ji, Reverend Siddh Bhau Ji, that have brought such laurels in your life. Your hard work, coupled with the blessings, do miracles. Always remember this aspect in life.
नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने आज मेरे को फोन पे करेक्ट करवाई। उन्होंने लिखवाया है, टुडे इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू अनाउंस whosoever wants to pursue higher education either in India or abroad, I am ready to sponsor their full course. But strictly for the needy students, for which I authorize JSS to decide. At the same time, I wish the students after getting the job pay back the amount slowly and gradually so that it can be reutilized for other students. अंत में उन्होंने लिखा है, once again congratulations for the outstanding performance. You have made me and my family all proud. God bless. Affectionately, yours दादा लखानी। इसके पहले कि मैं अपना स्थान लूं, मैं एक चीज आपके साथ और शेयर करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि यहां पर नविक परिषद द्वारा गरीब बच्चों को मदद की जाती है, उनको पढ़ाया जाता है और आज तक 6000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पांव पे खड़ा भी किया जा चुका है। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं, बच्चों से अपेक्षा करता हूं, जब कभी भी आप जीवन में अपनी खुशियां, अपनी उपलब्धियां, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, तो आप उन बच्चों का जरूर ध्यान रखें जिनको कि बेसिक एजुकेशन के लिए भी पैसे नहीं है। आप अपनी एफ्लुएंसी उनके साथ शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। और दादाजी भी यही चाहते हैं कि जिन बच्चों को मैं मदद करूं, आगे चलकर वो बड़े बनेंगे, बड़े स्थानों पर पहुंचेंगे, तो वो पैसे वापस करें जिससे कि वो पैसे दूसरे बच्चों के लिए यूज किया जा सके। अंत में मैं यही कामना करता हूं कि कल का भारत के आकाश में ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिसकी रोशनी से ये आकाश हमेशा रोशन होता रहेगा और किन्हीं भी उपलब्धि, किन्हीं भी विपत्तियों, कोई भी ऐसी कोई तकलीफ हो, वो उनको उस रोशनी को कभी धूमिल नहीं कर सके। धन्यवाद। Thank you, sir, for inspiring our students, and also a lot of thank you for conveying the message of Dada Khan Lakhani ji. Being a good person does not depend on your religion or status in life, your race or skin color, political views or culture. It depends on how good you treat others. A good human is affectionate, warm-hearted, caring, and compassionate. He brings happiness of peace of mind to oneself and automatically creates a positive atmosphere. He is none other than our most beloved and adorable sir, Mr. V.S. Rai, our chief guest of today's program. Now I would humbly request Mr. V.S. Rai, sir, to bless us and address all of us. Give a huge round of applause for him. Good morning, everybody. These words I uttered here after a long time, near about 2 months. In the morning when I was entering the premises of the school, that time the girls were entering there. I was tempted to say, hurry up girls, it's a prayer time now, please hurry up. Then I controlled myself. Most respected, my motivator, my role model, या मेरे आदर्श, Reverend Siddh Bhauji, all the respected members of the management, Secretary Sir, in charge of the Navnidhi School, in charge of Secretary Sir of JSS, Gopal ji, Damani ji, Dayaramani ji, and all other members of the management, heads of this institution, your new principal, Mr. Jain, Vice Principal Madam, HM Madam,
learned teachers, and my dear students. I am very much thankful to all the members of the management, especially the Reverend Siddh Bhauji, for inviting me, for honoring me as a chief guest of this important function. I am very much thankful to, from the core of my heart, to all of you for giving me such an honor. Dear students, this function is organized to honor all those girls who achieved excellent grades and the percentage in the board examination. You see, action speaks louder than words. Many times we utter so many things to you, we motivate you, we guide you in the classes also, or in general in the such type of sessions or conferences. You read so many things, motivational articles also, in the newspaper, in magazine, and whenever you see the other medias. But these things simply motivate us and inspire us to achieve the higher and higher goal or target. But actual thing is, how many of you actually convert these motivational thoughts into the action and achieve the result? So most important thing is the action taken by individuals. Now, teachers are there, heads are there in the school, management is also there to help you in all respects. You are lucky enough that it's so, you see, the management of this school and the neighboring school, Mithi Govindaram School, is such that they are always with you to help, all kind of help to achieve the very good academic atmosphere and the result in the examination. In no one school in the Bhopal or elsewhere such type of atmosphere exists, which is here in the schools. Infrastructure, library, labs, and the quality of teachers. The teachers are here, almost the teachers, 90% and above teachers are permanent. So why not our more and more students should achieve the result in the board examination more than 90%? If the staff is permanent, a quality staff is here in our school, so students should also achieve the such type of result. I congratulate to the class 12th girls, pass out girls, and especially those girls who scored more than 90% marks in this examination, and especially the class 10th girls. We have about more than 44 girls who have scored 9 and above CGPA. The result, why this 10th class has achieved such an excellent result? Because the new system of assessment or evaluation, they have understood each and every part of this evaluation. Because they concentrated on the formative examination. They took these examinations very seriously, because the formative examination has somewhat equivalent weightage as compared to the summative examination. So all those girls who are there in the present 9th class and 10th class, even this evaluation system we have started from the primary section. So now you take these things very seriously, even in these formative examination, whatever portion is there or whatever tools are used by the teachers, you take these tools seriously, concentrate on them, and appear in the examination, in formative examination. When you will improve your formative examination, naturally the whole examination, including the result of the summative examination, will further improve. So especially take care from the 9th class onwards, those girls are there in the 9th class. It is the proper time
To start with, naturally the next year your 10th result will further improve, and let us hope at least 80 girls will get the 9 and above CGPA. I wish present 12th class and the 11th, of course the 11th class which is coming up, they are having a very good batch. They are very good batch of the present 11th class. Now the present 12th class, it is a time for the present 12th class to further improve the result of the school. You see, we have this year, in 2013, we have maintained the same level, because the year before last year, the result was 12 girls were there in the 90% and above, and this year also we have the 12 girls 90% and above. So just now we have maintained the same level, but that is not enough. See, sky is the limit. You can do it, further you can improve, but remember, scoring is not enough for gaining the knowledge. You see, whichever subjects you learn here, you learn these subjects thoroughly. Because, of course, the percentage has some weightage in the interviews, but at the same time, the knowledge of the subject is very important when you face the interviews. Simply sitting or not answering the questions of the board and scoring very high marks is not enough, because more weightage is given to the personal interview also, as well as the marks scored in the other competitive examination apart from the our 12th class percentage of the marks. So what is to be done? You see, many speakers, the teachers and the students also, they have given so many hints to you to score, how to score the very good marks. I will not repeat these things again to you, because these things are already there in the mind, and at the same time, all these things are again and again reminded to you by our Reverend Siddh Bhauji in different sessions. He is continuously after you, and the teachers also, how to improve the result, how to become a successful in the life. You see, his able guidance, his motivation and inspiration will certainly, you take these things very seriously. I would request you to take these things very seriously, and certainly you will further improve. My best wishes are there to you for the best result further in the next session. Concentrate on the class, come regularly to the school, attend punctually to the classes, and follow the instruction of the teachers. In the beginning itself, I told you that you have the cream of teachers here, and these teachers are permanent teachers for more years. And certainly, with the able guidance of the teachers, you will improve. My best wishes for all of you, all the students and the teachers, and especially to the Mr. Jain sir, to further improve the next session result. Thank you very much. Once again, I am very much grateful to the management, Reverend Siddh Bhauji, and all of you for inviting me to this function. Thank you very much. Thank you, sir, for your wishes. A legendary human being, a noble soul, and a self-charismatic person who dedicated whole of his life serving the mankind, especially those who need support the most. Santji's philosophy and ideals are being carried out further in letter and spirit by his staunch disciple and successor, Reverend Siddh Bhauji, President, Shahid Hemu Kalani Educational Society. So without wasting time, I would most humbly request Reverend Siddh Bhauji to shower his blessings on all of us. Give a huge round of applause for him. आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय स्वजनों,
मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं, आपका इस गरिमामय कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जो रिजल्ट आया है उसमें टीचर्स ने, माता पिता ने, मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से पूरा हर दायित्व निभाया है पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन प्राइज आज उन बच्चियों को मिल रहा है जिन्होंने इनकी मेहनत की कदर की, इनके प्रति उनके मन में कुछ संवेदनशीलता थी कि ये लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा दायित्व क्या है। अपने दायित्व को समझ करके पूरे जुनून के साथ अपना पूरा समय और शारीरिक मानसिक शक्तियां पढ़ाई में झोंक दी और इतनी बढ़िया रिजल्ट लेकर आए हैं। यदि आपके अंदर ललक नहीं होती तो आप भी और स्टूडेंट्स की तरह ही रह जाते। अतः निष्कर्ष यह है कि जब तक आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे बिटिया, दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। और यह भी पक्का है कि न किसी के माता पिता हमेशा रहेंगे, न हमारे साथ हमारे टीचर्स रहेंगे, न मैनेजमेंट। जो कुछ आज आप इनके प्रति संवेदनशीलता के साथ दायित्व महसूस करेंगी और इनके बताए हुए रास्ते पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ पूरी मेहनत करके चलेंगे तो फिर इसमें कोई भी संशय नहीं कि आप अपने मंजिल को निश्चित रूप से पा लेंगे। ये कितने न हर्ष की बात है कि आज दादा कान लखानी जी ने न सिर्फ पुरस्कारों की राशि वरन भविष्य में आप जो बनना चाहें, जो पढ़ना चाहें, देश में विदेश में, उसका भी दायित्व अपने ऊपर लिया है। ये हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इस सौभाग्य को वही प्राप्त कर सकेगा जिसके मन में ये संवेदनशीलता होगी। और अच्छी तरह ये हृदयंगम कर लीजिए, लड़कों के लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है। जब जो बने नहीं बने कोई बात नहीं है, नहीं बनेंगे कोई भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे। बिटिया, लड़कियों के लिए अगर समाज में सम्मान के साथ जीना है, एकमात्र विकल्प है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। और वो भी आपके लिए टाइम लिमिट है। आपको लगभग 23-24 की उम्र तक कुछ बन करके किसी अच्छे पद पर आसीन हो जाना है। क्यों? ज्यादातर लड़के 26-27 की उम्र में एंगेज्ड हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं। यदि हम 23-24 तक किसी अच्छे पद पे आसीन हो गए तो निश्चित रूप से हमें अपने स्टेटस का बढ़िया जीवन साथी मिलेगा, जिसके साथ हमारा पूरा दाम्पत्य जीवन सुख, समृद्धि, आनंद में बीतेगा। जहां हमने थोड़ी सी अभी आलस की और ऐसे साल गंवा दिया, वो साल हमें आगे चल के बहुत महंगा पड़ता है बेटा, बहुत महंगा। उसकी कीमत क्या चुकाते हैं? परिणाम ये होता है कि हम 25, 26, 27 के हो जाते हैं, उसके बाद हमें लड़का ही नहीं मिलता है, और मिलता है तो हमारे पसंद का, हमारे विचारों का नहीं होता है। मजबूरन जो शादी होती है उस दाम्पत्य जीवन में वो सुख आनंद नहीं रहता है। इस बात को शिरदेय संत जी ने बहुत अच्छी तरह महसूस किया।
इसीलिए आपके लिए विशेष रूप से ये स्कूल और कॉलेज उन्होंने बनवाए हैं, और इस विश्वास के साथ कि आप लोग इन कॉलेजेस का अधिकतम सदुपयोग अपने विकास के लिए करेंगी। अरे पूरे देश से बच्चियां आ रही हैं, हमारे कॉलेजों में एडमिशन लेकर के पढ़ रही हैं। 300 ऑक्यूपेंसी के हॉस्टल भरे हुए हैं दोनों। दुख तब होता है जब हमारे ही स्कूल की, हमारे ही नगर की बच्चियां, जो कोर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट, अभी भी रिजल्ट जितने आए हैं यूनिवर्सिटी के हर स्ट्रीम में मेरिट में हमारे कॉलेज की बच्चियों का नाम है। ये सिद्ध करता है कि हमारे कॉलेजों में पढ़ाई बहुत बढ़िया है। रैगिंग नाम की चीज दूर दूर तक नहीं है। ड्रेस कोड लागू है, कोई फैशन पढ़ा नहीं है। बाबा शांति से पढ़ाई करो, एक भी पीरियड खाली नहीं जाता है। इतना बढ़िया एकेडमिक स्टेटस, इतना अच्छा माहौल, उसके अंदर जो आप स्कूलों से संस्कार लेकर आती हैं उसको और आगे विकसित करने, जो आगे चल के आपके कार्य स्थल पर और आपके परिवार में भी आपको काम आए, ये सब आपको कॉलेज में सिखाया जाता है। ये सब आज जिन बच्चों ने पुरस्कार अर्जित किया है, उनके पेरेंट्स को भी हम, माता पिता दोनों को सम्मानित कर रहे हैं। क्यों? कि इन दोनों का ही आपकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन बाकी बच्चों का क्या? यह विचार किया हमने, इसलिए हमने सोचा है कि इस साल 9th to 12th की बच्चियों के पेरेंट्स को अलग अलग सेशंस में बुला करके उनसे हम निवेदन करेंगे कि अब भी आप अपनी बिटिया की तरफ थोड़ा ध्यान दें, उसको सुविधा दें। पढ़ लिख कर किसी पद पर पहुंच गई तो फायदे होंगे। एक तो आपके ऊपर दहेज के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकेगा क्योंकि उसका पैकेज इतना बढ़िया होगा। दूसरा, उस बिटिया के अंदर जो अच्छे संस्कार हैं वो आगे चल के इस राष्ट्र को ऐसे नागरिक देगी जो इस राष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक निधि होंगे। जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतनी बड़ी कुर्बानी भी देने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। मैं विश्वास रखता हूं हर एक बिटिया में कि मेरी बात को ध्यान से सोचिएगा। आपके लिए कहीं भी फेल होने के लिए जगह नहीं बेटा। और आज पासिंग मार्क्स 60% हैं। यदि आपकी 12th में 60% है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बैठने नहीं दिया जाता है, नहीं तो आप फेल। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और दूसरी बात, आजकल 12th में आपके जो नंबर होते हैं उसके आधार पर उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के 100 में से 40% मार्क्स इसमें से मिलते हैं। इसीलिए आज 11th 12th की वैल्यू, उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। इसीलिए हम लोग 11th 12th के क्लासेस सुबह 7 बजे से शुरू करते हैं। और जिनमें ललक नहीं है वो बिटियाएं लेट आती हैं। कल से वो लेट को हम अंदर आने ही नहीं देंगे बेटा। जिसको आना है समय से 10-15 मिनट पहले आइए ताकि समय पे क्लास शुरू हो, क्लास के बीच में टीचर को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। इसी में आप सबका, आपके माता पिता का, टीचर्स का, हमारा सबका हित है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये क्या है, जो लोग समय पर आए उनको आकर हम बीच में डिस्टर्ब करें देर से आकर के? कहां का न्याय है ये?
इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, कृपा करके कल से आप 6:45 स्कूल प्रीमाइसेस में आ जाइए। 7 बजे बिल्कुल आपका पीरियड शुरू हो जाए। यह समय नहीं है सोने का, एक भी क्षण खोने का, ये वास्तविकता है, इसको महसूस कीजिए। यदि आज आपने यहां से निकलते समय ये संकल्प ले लिया कि मुझे अपने जीवन में कुछ बनना है और समय रहते बनना है, तो आप कल से बिल्कुल समय पर आएंगे। और जो हमारी प्राइज विनर्स ने सबने कहा, स्टडी शुड बी क्वालिटेटिव नॉट द क्वांटिटेटिव। कितना घंटा पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, कितनी एकाग्रता से पढ़ रहे हैं उससे मतलब है। वो एकाग्रता हमारे जीवन में तब आएगी जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सुदृढ़ होंगे। विशेष रूप से मानसिक विकृति से अपने को बचाएं, फालतू बातों में ध्यान न दें, न दूसरों की निंदा सुने न करें। फालतू की बातें जो हमारे से कोई संबंध ही नहीं, उन बातों को सुनने करने में अपना समय और एक खोपड़िया बेकार क्यों गंवाना बेटा। सिर्फ अपने लक्ष्य पर नजर हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जो बात हो वो ही सुने। या हुजन पिरी या पिरन जी पचार, इन्हन बिनी का धार, चल साईं के ना करे। हमारा लक्ष्य है हम अच्छे ही डिग्री प्राप्त करके अच्छे किसी पद पर आसीन हो जाएं, ताकि इस समाज में हम गरिमा के साथ सम्मान के साथ जी सकें। आज इस समाज में बिटियाओं को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है आप देख रहे हैं। ये शक्ति है आपकी, शिक्षा आपकी शक्ति है। हमारे डीआईजी इंदौर हैं दीदी श्रीमती अनुराधा सिंह शंकर, पढ़ लिख कर आज इस पद पर पहुंच गई हैं। क्या किसी की हिम्मत है कि उसकी तरफ टेढ़ी आंख करके भी देख सके? क्यों? पढ़ाई की है। ये आपके सामने जीवंत प्रमाण है कि पढ़ाई करने के बाद में आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि समाज का कोई भी असामाजिक तत्व आपकी तरफ टेढ़ी आंख से देख भी नहीं सकता। मैं आपसे तो मैंने प्रार्थना की है, लग जाए पढ़ाई में एकाग्रता से, पंक्चुअली रेगुलरली क्लास जरूर अटेंड करें। क्लास मिस किया एक दिन तो दूसरे दिन आपको पकड़ में नहीं आएगा। और यहां से जाकर के घर में रिवाइज करें। जो बिटियाओं ने बताया वो उनका खुद का अनुभव है, उन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये जितने भी टिप्स हैं दे आर वेरी यूजफुल। और इस हाफ ईयरली में मैं चाहूंगा कि आप सबको पुरस्कृत करने का मुझे मौका मिले, ये मैं विश्वास रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Bhauji, and a huge round of applause for a true motivator and a guide, Reverend Sid Bhauji.